मैं वंडरला हाजिर हूँ with another episode of the Property Risk की बात and initiative by JPS Rajers and खबर समय। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। हर एपिसोड में हम बात करते हैं about property news and the hot properties available in the town और आपको दिखाते हैं एक खास लोकेशन। मगर आज के एपिसोड में प्रॉपर्टी न्यूज और हॉट प्रॉपर्टीज के साथ हम लेकर आ रहे पैनल डिस्कशन जहां पे हम रियल एस्टेट मार्केट और सिचुएशंस के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे और आपको इंफॉर्मेशन देंगे। So without further ado, let's begin with today's episode of the property. Starting with the property news for today's episode. हर एपिसोड की तरह देबाशीष भट्टाचार्य, who is the senior general manager of JPS Rajers, is here with us to provide the information regarding the property news at the moment. Hello and welcome, sir. Thank you. सर, सबसे पहले आप हमें बताइए प्रॉपर्टी न्यूज रिगार्डिंग सिलीगुड़ी। एक अच्छी खबर है इस बार। दिस इज एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एडवाइजर ऑफ सिलीगुड़ी is organizing a Real Touch 2021 that is conclave on real estate we shall have all realtors and builders at Mayfair Tea Resort on 30 and 31st January 2021 में। So एक अच्छी खबर के साथ साल शुरू हो रहा है। The builders as well as realtors can have exchange their views regarding real estate property in Siliguri. So that is the good news. Second good news, challenges आ रहा है यहाँ पे। ये जैसे ही प्राइस अभी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स प्राइस का इंक्रीज हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन का प्राइस भी थोड़ा बढ़ रहा है। द सेम इज हैविंग अ प्रेशर ऑन द सेल्स प्रोसेस ऑफ प्रॉपर्टीज आल्सो। अनदर चैलेंज जो आ रहा है सिलीगुड़ी में, द प्रॉब्लम विद द अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान्स रिमेन्स इन सिलीगुड़ी एंड द सेम इज लीडिंग टू ह्यूज डिले इन लॉन्च ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। जैसे प्लान डिले हो रहा है, प्लान पे आप पास करने में, अप्रूव होने में, तो प्रोजेक्ट भी डिले हो रहा है स्टार्ट करने में। The same is leading to the scarcity of real estate in premium location and will lead to the price rise also. That is the few challenges. I'm sure the administration will take that is care on this and will definitely solve out and resolve these problems very soon. और सर, अगर बात करें नेशनल लेवल की, तो in regards to the national level, what news do we have for today? National level, as we come to the end of 2020, we see that the demand of real estate has picked up a lot as compared to first half, right? And supply of the same has been drying out. That is the things to be concerned. This all indicates the chances of price upswing in the real estate, क्योंकि अभी स्टॉक कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। That indicates the chances of price upswing in the real estate till the time we see another surge of supply in the first quarter of 2021। जैसे ही अभी सप्लाई मिल जाएगा प्राइस फिर से स्टेबल हो जाएगा। पर लेकिन अभी जो हाल है, अभी डिमांड ज्यादा है लेकिन स्टॉक उतना ज्यादा नहीं है। तो ड्राइंग हो रहा है स्टॉक, तो प्राइस हाई का एक चांस अभी भी रह गया है इसमें। एंड सर, न्यूज के अलावा अगर हम बात करें बैंक रेट्स की, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, तो व्हाट डू वी हैव the current situation existing at the moment for the bank rates for loans and finance in the moment? You have got rightly pointed out, the bank has an immense role in the real estate business. If you look at the banks at a glance, they have come out with a very positive steps. Every bank has cut down their rate of interest in terms of home loan. The Pioneer Bank is leading to this. Union Bank of India, Kotak Mahindra Bank, they have come out with a 6.70, 6.75% of rate of interest. Bank of India 6.80, and State Bank of India, Axis Bank, IDBI Bank, they came out with a 6.90. Earlier, if you look at Andhra, the rate was pretty high, and it will definitely impact on real estate business also. Now, मैं जो as a expert बोलूँगा, अभी ये जो अभी एरा चल रहा है, this is the high time of purchasing a flat because bank rate इतना कम अभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है फिलहाल। So this is another that is good news for that is real estate business. That's all from our that is news section today. Thank you so much, sir. Proceeding with the hot property segment. इस segment पे हम आपको बताते हैं about the currently available properties in the region और देबाशीष सर हमें बताएंगे available properties at the moment. So please. चलिए व्यूअर्स, इस एपिसोड में हम फिर से ले चलते हैं आपको हॉट प्रॉपर्टी सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग चुन के लेकर आते हैं आपके लिए मनपसंद प्रॉपर्टी। तो शुरुआत करते हैं एक कमर्शियल रेंट प्रॉपर्टी से जो कि है इन सिटी प्लाजा सेवाक रोड में।
It is in first floor. There is commercial space below, that is comprises of 1000 square feet. बड़ा एक commercial space है. It is a front facing on Shibok Road. रेंट है 50,000 रुपीज. और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको फ़ोन करना होगा 9933022222 JFS Realtors को. And so, for high-end projects, what do we have today? We have got a very beautiful property, that is aspiring properties in Lumina apartment, Uttarayan. It is a 3 BHK flat, 1700 square feet. Big flat, it is available on 12th floor out of 13. The flat is in ready to move condition. It is fully furnished. That is another big advantage. And as you know, this flat belongs to a very posh locality. और ज़्यादा जानकारी के लिए, इसको प्राइस जानकारी के लिए आपको वही डायल करना होगा नंबर में 9933022222 JFS Realtors को. And so this was ready to move in properties. अगर हम बात करें land की, so land में what do we have today? We have got a very posh area land in Uttarayan. It is 8 cut plot, north facing plot है. So वास्तु जो जिन लोगों का पसंद है, this will definitely a good choice for them. It is in F block, प्रीमियम लोकेशन है ही, वास्तु कंप्लेंट है. इसका प्राइस भी बहुत एक्साइटिंग है. प्राइस जानने के लिए आपको फोन करना होगा 9933022222 JFS Realtors को. This was all about the hot properties for today's episode. जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आज का एपिसोड खास है. आज के एपिसोड में we are going to have a panel discussion with our guest for the episode. So आगे बढ़ते हैं and let's begin with the panel discussion for the episode of the property real estate बात. नमस्कार, मैं संजय और आप आज फिर देख रहे हैं प्रॉपर्टी द रियल एस्टेट की बात. और आज हम आपके साथ विशेष रूप से जुड़े हैं. आज हमारी इस चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान शामिल हो रहे हैं. जैसा वेंड्रिला ने आपको बताया कि आज हमारे साथ विशेष प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात में विशेष चर्चा में जुड़ेंगे कुछ मेहमान. तो मैं अपने मेहमानों के साथ आपका परिचय करा दूं. हमारे साथ है नवीन अग्रवाल, डायरेक्टर सिद्धि ग्रुप. नमस्कार नवीन जी. नमस्ते. और ये कड़ाई के मेंबर भी हैं. और मेरे दूसरे तरफ बैठे हैं संजय गोयल जी, जो चार्टेड अकाउंटेंट प्लस फाइनेंशियल और रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी है. और इनके बाजू में बैठे हैं विजय अग्रवाल, डायरेक्टर सीपी ग्रुप. और इन सबके परिचय के साथ एक और ऐड कर देता हूं कि क्रेडाई नॉर्थ बंगाल के ये तीनों सदस्य भी हैं. और मैं अपना परिचय दे देता हूं कि मैं संजय शर्मा, आपको पता ही है. इस रियल एस्टेट की बात का विशेष तौर पर जब भी एपिसोड आता है तो उसको होस्ट करने मैं आता हूं. आज हम जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं वह होगा कैसा रहा वर्ष 2020. कोविड के जो संकट के दौर में भी रियल एस्टेट ने कैसा काम किया, किन चुनौतियों से निपटना पड़ा. और आज जब हम वर्ष के अंतिम क्षणों में खड़े हैं, अंतिम दिनों में खड़े हैं, तो कैसा लग रहा है कि आने वाला वर्ष 2021 क्या वाकई 19-20 से 21 होगा. 21 मतलब क्या बेहतर होगा. तो नमस्कार नवीन जी. सबसे पहले मैं आपसे रूबरू होकर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप कॉमर्शियल जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसमें भी डील करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोविड का इंपैक्ट मॉल, कॉमर्शियल और जो अलग अलग जो कॉमर्शियल के जो प्रोजेक्ट है उन पर कैसा रहा कोविड के दौरान? ऐसे है संजय जी, 2020 प्रथम के 4 महीने जैसे आप पकड़ेंगे अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस थे, क्या मॉल के अंदर कोई नहीं जा पाएगा, रेस्टोरेंट सब बंद थे, तब एक इफेक्ट था. उसके बाद जब ये रेगुलेशंस खुल गए तो आप खुद ही देख पाओगे मॉल के अंदर जो भीड़ अभी देख पाओगे, दुकानों में भीड़ देख पाओगे. तो प्रथम के 4 महीने सबके लिए एक असमंजस जैसी स्थिति थी. बट उस 4 महीने के बाद सब कुछ एक नॉर्मल्स की तरफ आ गया है. और कॉमर्शियल सेगमेंट में अगर हम देखते हैं तो प्रथम के 4 तल्ले उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी. और ऊपर के तल्ले में जैसे जब हम लोग जो टारगेट करते हैं रेस्टोरेंट्स के लिए या बिग ऑफिसेस के लिए, तो ये सब जो है अब आफ्टर नवंबर बहुत नॉर्मल की तरफ आ गया है और उसमें भी काफी अच्छी बुकिंग्स आ रही है. तो हमें मतलब प्रथम के 3 से 4 महीने में प्रॉब्लम्स थी, पर उसके बाद जो है
एवरीथिंग इज इन नॉर्मल स्टेज और बहुत अच्छा चल रहा है अभी। और रह गई 2021, तो अगर 2020 के एंडिंग अगर ये बहुत बढ़िया तरीके से जारी है तो 2021 में एक बूम हमको देखने को मिलेगा, ये हम एक्सपेक्ट करें। माने ऑर्डर जो आप लोगों को मिल रहे थे जैसे मॉल के या इसके क्या बोलते हैं कमर्शियल जो भी शॉप्स वगैरह के, तो इसमें कोविड के दौरान कितना माने डिफरेंस आया कोविड से पहले और अभी? कोविड से पहले और कोविड से अभी में मोटामोटी आप ये देखिए, चलिए 10% कैंसिल भी हुई थी क्या? नहीं, कोई बुकिंग कैंसिल नहीं हुई। हाँ, पेमेंट्स डिफर हो गए, जो पेमेंट्स हमें मिलने थे वो मोटामोटी आप समझिए 3 महीने के लिए डिफर हो गए, बट कोई कैंसिलेशंस नहीं रहा। और ये है क्या उसके बाद कोविड के बाद अब ये आप कॉमर्शियल सेक्टर में 10% से ऊपर की तेजी है, 10% से ऊपर में रेट्स की तेजी है। रेट्स की। और अगर आप देखा जाए तो कॉमर्शियल अभी भी एक स्कैर्सिटी है मार्केट के अंदर, मतलब इतने प्रोजेक्ट्स नहीं है कॉमर्शियल प्रोजेक्ट जितने की रिक्वायरमेंट है। तो हमें नहीं लगता कि कहीं भी ये मतलब कहीं डी ग्रोथ या इसकी तरफ है। 2021 में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और सब बूम करेंगे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन। नवीन जी के पास मैं दोबारा आऊंगा, उससे पहले मैं विजय जी से जानना चाहूंगा। विजय जी, आप तो रेसिडेंशियल में डील करते हैं, तो मेरा जो क्वेश्चन विजय जी इनके नवीन जी से था, सेम क्वेश्चन आपसे रहेगा कि कितना कठिन रहा 2020 और संभावनाएं क्या देख रहे हैं इस कठिनाई में, जो चुनौतीपूर्ण जो समय रहा उससे आपको कितना बल मिला और कितनी चुनौतियों का सामना करने का अवसर मिला और कैसा रहेगा आपको लगता है? देखिए संजय जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खबर समय एवं संजय जी जीएफएस रियल्टर्स को कि आप लोग काफी दिनों से ये एक मुहिम चालू किए हैं, जो एवरी संडे 12 बजे आप लोग प्रॉपर्टी के बारे में आप बता रहे हैं और रूबरू करा रहे हैं नॉर्थ बंगाल के पूरे नेचर से एवं हमारे पास क्या उपलब्ध है। और बात करूं 2020 कोविड पीरियड्स की, देखिए इम्पैक्ट जो आया वो अनप्रेसिडेंटेड था। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का इम्पैक्ट कभी हमारी लाइफ में आएगा। 1918 के बाद में इस तरह का सिचुएशंस 100 साल बाद आया, जो हमने किसी ने भी नहीं सोचा था। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पूरी हॉल्ट पे चली गई थी, ट्रांजैक्शंस एकदम जीरो हो गए थे पहले 3-4 महीने में, सप्लाई चेन टोटल डिस्टर्ब हो गए थे, लेबर्स माइग्रेशन कर रहे थे, कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लिक्विडिटी क्रंच डेफिनेटली आ गई थी, जीडीपी ग्रोथ ऑल ओवर इंडिया गिर गए थे, पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी थी। तो इस समय जब हम भी बचने का एक यही दिमाग में था कि इस साल को जस्ट अपने को बचना है, एक इतनी बड़ी महामारी जो आई थी, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही था कि इससे अपन कैसे उभर सके। तो हमने भी कभी नहीं सोचा कि अब रियल एस्टेट का क्या होगा नहीं होगा, डेफिनेटली एक दिमाग में टेंशन सा था, स्टॉक्स हमारे लाइन पड़े थे, अब क्या होगा नहीं होगा। लेकिन फाइनली हमें एक आशा की किरण दिखती गई, जैसे जैसे इसका सुधार हुआ, हमारे गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाए, इंटरेस्ट रेट्स में, बैंक इंटरेस्ट में जब गिरावट आई तो हमारे को एक पॉजिटिव मूव फीलिंग आई और आस्ते आस्ते ग्रेजुअली अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं, सेल्स आ रही है और आशा करते हैं कि आगे भी अच्छा चलता रहेगा। आपकी बात से अगर मैं सहमत होता हूं और आपकी बात को ध्यान में रखकर मैं चाहूंगा कि संजय जी हमारे साथ फाइनेंशियल और रियल एस्टेट कंसल्टेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, ये हमारे साथ है। आप कितना सहमत है इनकी बातों से? आपको क्या लगता है कि सही रहा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा कोविड का? देखिए, जब कोविड आया ना तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, लोगों को ये मानना था कि कोविड का इम्पैक्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जैसा कि आपके क्वेश्चन से भी फील हो रहा है। लेकिन जो इनिशियल पीरियड था ना, जैसे जैसे 1-2 महीने निकले, देखने में आया कि लोगों को अपने घर के तरफ या अपनी एक खुद की प्रॉपर्टी की तरफ रुझान बहुत स्ट्रांगली बढ़ा। और उसके साथ क्या हुआ, एडवांटेज क्या हुआ, ये एक सेंटिमेंटल तो उनको लगा कि अपना घर होना चाहिए, क्यों हम लोग भाड़े के घर में रहे। और साथ साथ में क्या हुआ, बैंकों की इंटरेस्ट रेट बहुत फास्ट लोअर साइड में आई। जो पहले के टाइम में 9%, 9.5% थे होम लोन्स के रेट, तो आप 1 लाख रुपया पे EMI 1000 रुपया, 950 रुपया आती थी, वो रिड्यूस होके अभी टू द एक्सटेंट ऑफ 700 रुपया पर लाख भी आ गई है। तो ये रीच में आने लगे लोगों को। सेकंड, डिपॉजिट रेट्स लोगों के बहुत रिड्यूस हो गए। अब लोग बैंक में पैसे रखेंगे तो उनको यील्ड कुछ भी नहीं है, 3% 4% है। वो देखते हैं मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम पड़ी है, कुछ पैसे अपने लगा लूं, बैंक से इतने सस्ते दर में ब्याज मिल रहा है, उस पर टैक्स बेनिफिट भी है, प्रॉपर्टी ले लूं।
तो ये सब को देखते हुए सारी चीजें जो निकली वहां से कोविड से वो ऑल पॉजिटिव टुवर्ड्स द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। थर्ड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें क्या आया कि कोविड के पीरियड में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो हो गई। वो स्लो होने से क्या हुआ, सप्लाई रिड्यूस हो गया और साइमल्टेनियसली ये जो डिमांड जो लोगों को लगा कि कम होगी या स्टेबल होगी, ये जो वेरियस फैक्टर्स थे इंटरेस्ट रेट के, डिमांड बढ़ गई। सप्लाई कम और डिमांड बढ़ने से उसका इम्पैक्ट ये आया कि प्राइसेस राइज करने लग गए। जो लोगों में एक एप्रीहेंशन था कि हो सकता है प्राइसेस कम आए, आप सिलीगुड़ी में देखेंगे तो हर प्रोजेक्ट में प्राइसेस कहीं कहीं पे 500-500 रुपए 400-400 रुपए भी अप्रिशिएशन आए। वो तेजी को देखते लोगों ने लगा दिस इज द राइट टाइम टू बाय, दैट ब्रॉट इन मोर डिमांड इनटू दिस। तो एट द एंड जब हम दिसंबर में बैठे हम देखते हैं कि कोविड का एक पीरियड था जहां पे एक एप्रीहेंशन था सबको, मेरे को पता विजय जी नवीन जी भी कंप्लेंट करेंगे कि ऐसे लगा कि क्या होगा इससे, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते गए इट टर्न्ड आउट टू बी पॉजिटिव, स्पेशली फॉर अ सिटी लाइक सिलीगुड़ी जहां प्राइसिंग ऑलरेडी बहुत लोअर साइड में है। नहीं, नवीन जी ने कहा भी है, जो मैंने सुना कि 10% रेट इंक्रीज हुआ है। नवीन जी ने कहा 10% फॉर कमर्शियल एस्पेक्ट्स। देखिए इस पीरियड में जहां लोगों की कमर्शियल एक्टिविटी की तरफ में रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, आप किसी का भी ग्रोथ देखेंगे उस पीरियड में भी कमर्शियल पे 10% होना इज अ वेरी वेरी गुड साइन। कमर्शियल में 10%, रेसिडेंशियल में तो हमने देखा है कि 25% 30% तक का भी इंक्रीमेंट आया है। कमर्शियल में आना, हाँ यस, और कमर्शियल में आना तो इज अ वेरी वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर दैट। आपको क्या लगता है जो संजय जी बोल रहे हैं 20 से 30% का रेसिडेंशियल में आया है, वो कहां तक सही है? हाँ डेफिनेटली संजय जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं। डिमांड बढ़ा है, डिमांड बढ़ा है। हमने भी कुछ इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने भी कुछ क्वालिटी पे ध्यान दिया है कि हम इसको कैसे फोकस कर सकते हैं, क्या एमिनिटीज इसमें डाल सकते हैं। तो हमने जैसे जैसे इस थॉट प्रोसेस को लाया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए सिलीगुड़ी के अंदर में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अब आने वाले हैं, तो उसमें काफी जैसे एमिनिटीज वगैरह दे रहे हैं। तो इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली एक अप्रिशिएटेड वैल्यू जो हमारे को मिलना चाहिए वो डेफिनेटली संजय जी की बातों से मैं सहमत हूं कि अप्रिशिएशन आया है। और मैं आप सभी मेहमानों से जब बातचीत कर रहा था तो मेरे जहन में एक विचार आया कि काफी लोग कहते हैं कि सिलीगुड़ी हर क्षेत्र के लिए सुटेबल जगह है, अच्छा स्पॉट माना जाता है, चाहे वह व्यवसाय किसी भी तरह का व्यवसाय हो। मगर अभी फिलहाल क्या सिलीगुड़ी को रियल एस्टेट के लिए बेहतर स्पॉट माना जा सकता है आपकी नजर में? यदि मैं बेहतर माना जाने की बात करूं क्यों? तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरे को लगता है कि ये जो टाइम हमारे को एक स्लॉट टाइम खबर समय ने जो टाइम दिया है वो भी टाइम कम हो जाएगा। बिकॉज मैं अपनी लाइफ में 20 साल से, हाँ संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ कि 20 साल से मैं रियल एस्टेट में हूँ। मेरे को 2-4 अपॉर्चुनिटीज मिली, बैंगलोर में भी काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला, दिल्ली में भी मिला। आई एम इन टच विद, मेरे ग्रुप में दिल्ली से भी पार्टनर्स हैं मेरे, तो उनका भी एक कहना ये रहता है कि सिलीगुड़ी इज द लवली प्लेस एंड काम करने के लिए सिलीगुड़ी इज द बेस्ट प्लेस। तो यदि मैं आपको बताऊं कि सिलीगुड़ी का क्या एक एडवांटेज है, कोई भी लोग बाहर से आते हैं, हम उनको एक ड्राइव पे लेके जाते हैं तो विद इन 15 मिनट्स ऑफ ड्राइव एक नेचुरल ब्यूटी जो सिलीगुड़ी के अंदर में है, दैट गिव्स अ ड्राइव कि सिलीगुड़ी डेफिनेटली एक रियल स्टेट में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। कनेक्टिविटी की यदि मैं बात करूं तो इट हैज गॉट अ वेरी लवली कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ऐसा है कि यदि आज हम बॉम्बे में हैं, इंडिया के कोई भी कोने में हैं, हमको सिलीगुड़ी पहुंचना है तो हम सिंगल डे में सिलीगुड़ी पहुंच सकते हैं। तो इट्स गॉट अ वेरी गुड कनेक्टिविटी। और वेदर कंडीशंस की यदि बात करूं तो जितना मैं इंडिया घुमा हूं, मैं मानता हूं कि सिलीगुड़ी हैज गॉट द बेस्ट वेदर इन द सेंस कि मान लीजिए कि जब गर्मी की टाइम है तो गर्मी सिलीगुड़ी में आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ, आई हैव नेवर सीन कि टेम्परेचर क्रॉस टू अबाउट 36 और 37 डिग्रीज। इवन 36 डिग्रीज जब टेम्परेचर होता है तो अपने यहाँ मानसून जितने अच्छे हैं कि एकदम एक्सट्रीम हीट होता है तो वो मानसून आ जाते हैं, तो ज्यादा अपने को फीलिंग आती नहीं है। दैट इज ऑल्सो मान लीजिए 15-20 दिन एक एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है तो हम लोग उसका जो भी एक उपाय है वो हम लोग एसी वगैरह से हम लोग कर लेते हैं। बाकी वेदर हम माने 15-20 दिन यदि मैं बोलूं कि ज्यादा गर्मी है तो बाकी 350 दिन सिलीगुड़ी से बेहतर जगह हो नहीं सकती है। ना ज्यादा ठंड, ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा मानसून, मतलब सिलीगुड़ी इज अ पैराडाइज। हेल्थ फैसिलिटीज भी ओके हैं, बढ़ रहे हैं, अभी काफी हेल्थ फैसिलिटीज सिलीगुड़ी में आने वाले भी हैं, आ भी रहे हैं। तो संक्षेप में यदि आप मेरे से सुनेंगे तो सिलीगुड़ी इज द बेस्ट प्लेस टू लिव। जो एक टाइम था जब हमारे एनआरआईज जो मैंने स्टडी देखी है, स्टडी पढ़ी है कि एनआरआईज लोग प्रिफर करते थे कि बैंगलोर आफ्टर एक सर्टेन एज
जब वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो बैंगलोर की तरफ में एक रुझान था कि वो लोग बैंगलोर की तरफ में मूव करते थे अपनी बची हुई लाइफ को एक एंजॉय करके जीने के हिसाब से। आने वाला समय सिलीगुड़ी का है, डेफिनेटली लोग सिलीगुड़ी में आएंगे और सिलीगुड़ी में रहना पसंद करेंगे। यही मतलब आपके अनुसार काफी अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य है रियल एस्टेट डेवलपर बिल्डर्स के लिए भी, और जो निवेश कर रहे हैं या फिर जो बायर्स हैं उनके लिए भी। बिल्कुल। तो नवीन जी, कॉमर्शियल के मामले में भी क्या आपकी राय विजय जी के साथ मिलती है? एकदम सही है। आप एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा विजय जी की बातों में, जैसे सिलीगुड़ी बॉटल नेक है 8 स्टेट्स के लिए, और सिलीगुड़ी 3 कंट्रीज को सराउंडिंग कर रहा है, जैसे नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। तो इस सब का इम्पैक्ट भी सिलीगुड़ी पे पहले से भी था, और आज आप देखेंगे कहीं से भी अगर कोई भी हिल से या प्लेन से अगर सिलीगुड़ी के आता है तो वो भी एकदम सेटल होता है विद इन 6 to 12 मंथ्स के अंदर, जो कि आप दूसरी जगह पे देखेंगे कहीं भी आप शिफ्ट करते हो तो आपको 2-4-5 साल लग जाते हैं सेटल होने में। बट सिलीगुड़ी की हवा या सिलीगुड़ी का पानी आप समझिए इस तरीके का पानी है जो कि हर तबके के मनुष्य को एक्सेप्ट करता है। यहाँ आपको 10 रुपए में भी खाने को मिल जाएगा, और यहाँ 1000 रुपए का प्लेट भी है। तो हर तबके के लिए सिलीगुड़ी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। अब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ तो आपको कई जगह आपको मिलेगी जहां आप लैंड नहीं ले सकते, जैसे आप जाओ मिजोरम या नागालैंड के अंदर आप लैंड नहीं ले सकते। वहां के भी अभी जो पीपल है सिलीगुड़ी में आ रहे हैं, यहाँ प्लॉटिंग्स कट रही है तो वहां भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया साइन है, और एक बहुत बढ़िया बात है कि हम लोग सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं और सबको लेके चल रहे हैं। यहाँ अभी तक आप देखिएगा कोई भी नेचुरल कैलेमिटी सिलीगुड़ी के अंदर नहीं आई है इस टाइप से, और ना ही आप मानसून में देखेंगे क्या कोई फ्लड आ गया है सिलीगुड़ी के अंदर, इस टाइप से कुछ कहानी नहीं है यहाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। मतलब आप ये देखिए ठंड के टाइम में भी आपको 10-12 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, गर्म के टाइम में भी आपको 35-36 डिग्री से ऊपर मिलता नहीं है। तो मैं तो ये बोलूंगा अगर बेंगलोर से भी बेटर अगर पोजीशन आप देखोगे तो आप सिलीगुड़ी आपको मिलेगा आफ्टर एज ऑफ 60 और 55। यहाँ आप रहने को सोचोगे, और मेरे हिसाब से रियल स्टेट आपके लिए बेस्ट प्लेस रहेगा। अगर आप कहीं भी फ्लैट या कुछ भी आप लेके रहते हो तो आफ्टर टाइम पीरियड आप इसको एंजॉय करोगे। नवीन जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी और आपने काफी अच्छे ढंग से आपने और विजय जी ने बताया। संजय जी, लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें सिलीगुड़ी को रहने के लिए और ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, दोनों क्षेत्र के लिए अच्छा माना जा रहा है। अगर मैं विजय जी और नवीन जी के अलावा भी बात करूं तो मार्केट रिव्यूज यही है। आपके पास कैसे कंसल्टेंसी के लिए लोग बातचीत करते हैं, कैसा माने चाहते हैं वो लोग, माने सिलीगुड़ी के बारे में क्या सोचते हैं? बाहर से अगर लोगों को इंक्वायरी आती है, लाइक जो सराउंडिंग अपने जो नियर बाई जो स्टेट हैं उनसे जब इंक्वायरीज आती है, बिहार हो, नेपाल हो, जो राज्य अलग जो कंट्रीज है वहां से भी आते हैं, तो कैसी इंक्वायरीज आती है और आप क्या उनको समझा पाते हैं? किस हद तक वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं? आप क्या लगता है? इस सिलीगुड़ी ईस्टर्न इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, इज वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। आपने जैसे बताया बिहार, सिक्किम, आसाम, नेपाल, आसपास के जितने लोकेशंस है ना, वहाँ के लोग जब सोचते हैं कि हम अपनी जगह को छोड़ के कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें तो पहला जो सिटी उनके दिमाग में आता है ना वो सिलीगुड़ी है। इसके पीछे 2-3 वाइटल फैक्टर्स हैं उनके रीजन। वन इज द सुपर्ब कनेक्टिविटी। अगर आप देखो तो एयरपोर्ट अगर इधर में है तो वो यहीं पे अपने पास में है, मेजर रेलवे स्टेशन है तो वो अपने पास ही है। यहाँ पे कोई भी इस तरफ जाना चाहता है सिक्किम तरफ, वो यहीं से होके जाता है। मेजर एजुकेशन हब है ये। लोग एजुकेशन के लिए जो पहले हिल्स में जाते थे वो अब इधर ही आके रहते हैं। रहने के लिए, काम करने के लिए मेजर बिजनेस एक्टिविटी जो है इस पार्ट की, कलकत्ता के बाद अगर आप देखेंगे तो वो सिलीगुड़ी में होती है। सबसे बड़ा, उससे ही बड़ा फैक्टर है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल सिटीज अक्रॉस द कंट्री। आप देखिए लास्ट 15 years, 20 years, 25 years में देयर हैज बीन नो सच काइंड ऑफ एन एक्टिविटी व्हिच कैन बी सेड कि जिससे कि हमारे प्राइवेसी को या हमारे लिविंग में कहीं पे भी कोई अड़चने आए। कहीं भी गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है। ये सब को देखते हुए आप कभी रात को आराम से निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी के लिए भी। हर तरीके से द लाइफ इज वेरी पीसफुल एंड सिक्योर्ड यहाँ पे। और एक जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है, अगर आप ये इंडेक्स को रखते हैं, इस इंडेक्स को रखने के लिए, इतने पॉजिटिव्स को रखने के बाद अगर आप कोई सिटी से कंपेयर करेंगे, प्राइसेस इन दोज सिटीज आर वेरी हाई कंपेयर टू प्राइसेस इन सिलीगुड़ी। इतने सारे पॉजिटिव्स अगर कई सिटी में होना तो वहाँ के प्राइसेस बहुत हाई होते हैं।
कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो आप कहना चाहते हो कि अगर मेट्रो सिटीज की बात करें जहां एमिनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है प्राइजेस के मुकाबले में, तो सिलीगुड़ी काफी कम प्राइजेस में अवेलेबल हो रहा है आज के डेट में। द प्राइसेस वेदर इट इज रेसिडेंशियल और कमर्शियल कंपैरेटिवली आर वेरी वेरी रीजनेबल। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग जब ऑल्टरनेटिव सोचेंगे ना कि हम सिलीगुड़ी इन्वेस्ट करें या कोई और सिटी में, तो वो कंपेयर करेंगे तो देखिए सिलीगुड़ी इतने कुछ होने के बाद भी प्राइसेस आर सो रीजनेबल, द रिटर्न्स आर हायर, तो डेफिनेटली वो यहीं आना चाहते हैं। तो लोगों का रुझान ये सिलीगुड़ी की तरफ, अब एशियन हाईवे 2 भी कनेक्ट कर दिया। तो ये सब चीज को देखते हुए अब ग्रोथ आउटस्कर्ट्स में बहुत रैपिड है, स्टिल प्लेंटी ऑफ लैंड इज अवेलेबल। यहाँ से आप 5 किलोमीटर क्या मायने रखता है आपका बड़े सिटीज में जाएंगे, यहाँ से आप 5 से 7 किलोमीटर बाहर जाइए, आप देखिए इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इतने रीजनेबल प्राइसेस में है। कौन से सिटीज में मिलेगा, कहीं नहीं मिल रहा है। तो इस सिटी के पॉजिटिव्स बहुत है। तो सिटी के पॉजिटिव बहुत हैं, संजय गोयल जी ने बताया। और मैं विजय जी से फिर एक बार रूबरू होऊंगा। और विजय जी, जैसा संजय जी ने बताया कि सिटी के पॉजिटिव्स बहुत हैं और यहाँ की महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज्यादा है रियल एस्टेट मार्केट में। अब 2021 में जो नया वर्ष आ रहा है, कोविड तो खैर चलता जा रहा है, जब तक वैक्सीन आएगी उसके बाद ही कुछ ना कुछ इसके अंदर में सुधार आएगा। तो 2021 से क्या आशाएं, आपको क्या लग रहा है, कितने और यहाँ नए जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ सकते हैं? देखिए सिलीगुड़ी डिमांड के ऊपर सब कुछ होता है, तो कैसा लग रहा है, डिमांड आएगी? देखिए सिलीगुड़ी में 2021 में मेरा ये मानना है कि एक अच्छा बूम आने वाला है, क्योंकि सिलीगुड़ी एक ऐसी जगह थी जो अनएक्सप्लोर्ड थी। मेरे नजर में सिलीगुड़ी को एक्सप्लोर करने की दरकार थी, जो कि खबर समय के माध्यम से अब सिलीगुड़ी आपके व्यूअर्स भी काफी हैं और अब सिलीगुड़ी को आपने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करवा दिया है अपने व्यूअर्स को। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली एक बूम आने वाला है और इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग अभी इच्छुक है फ्लैट लेने में, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि इमीडिएटली आप लोग अपना फ्लैट परचेज की तरफ जाइए। हमने क्रेडाई नॉर्थ बंगाल के तरफ से एक मुहिम भी चालू करी थी, वाई स्टे इन अ रेंटेड हाउस। इस मुहिम में हमने बहुत क्लियर तरीके से ये हम अपने दर्शकों को या जो भी बायर है, हमारे टेंटेटिव बायर है, उनको ये बताना चाह रहे थे कि आज के दिन में आप एक रेंटेड हाउस में जो रह रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आप रेंटल दे रहे हैं, बैंक इंटरेस्ट कोविड हैज बिकम अ काइंड ऑफ लाइक बूम फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन आवर सिलीगुड़ी। व्हाई कि अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिर चुके हैं, जैसे संजय जी ने भी बताया, संजय गोयल जी ने बताया कि पर लाख का ईएमआई अराउंड 600-700 रुपीज के लगभग आने लगा है। अब हम 30 लाख का एक फ्लैट, एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा, 30 लाख 35 लाख का एक फ्लैट मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारे बायर्स को इन्वेस्ट करना है 5 से 7 लाख 10 लाख रुपया। बाकी हम बैंक लोन देने के लिए बैठी है। जो हम ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं वो ईएमआई इज नॉट अ लॉस। वो ईएमआई टोटल, ये मान लीजिए कि आप जो रेंटल दे रहे थे वो आप अपने ईएमआई में दे रहे हैं, और जो ईएमआई आप टोटल विद इंटरेस्ट आप लास्ट में कैलकुलेट कर सकिएगा, या आपने लास्ट का यदि अपन 10 साल 15 साल 20 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखें, तो जो भी टोटल ईएमआई हमने दिया है तो उतना हमारा फ्लैट का एप्रिसिएशन हो जा रहा है। तो बेसिकली मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि 40 लाख का फ्लैट सिर्फ 10 लाख का पड़ता है यदि प्रॉपर्ली इसको प्लानिंग की जाए। तो जो भी लोग इच्छुक है उनको आज के दिन में ले लेना चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट का मौका है कहने का मतलब है, जो आप ले रहे हो फ्लैट, वो आने वाले समय में उस फ्लैट की वैल्यू जो है वो आपको इनकम देकर जाएगी, और आपने मेरे से बिल्कुल इनकम देके जाएगी। और आपने मेरे से ग्रोथ के बारे में पूछा था, तो अभी मैं अपने दर्शकों को इसलिए आज ये जनाना चाह रहा था कि वो अभी इमीडिएटली डिसीजन लेके परचेज करें, क्योंकि सिलीगुड़ी जिस हिसाब से आप लोग एक्सप्लोर करवा चुके हैं लोगों को और आगे भी एक्सप्लोर कर रही है, कलकत्ता के बाद में सिलीगुड़ी हैज बिकम अ वेरी मच बिजनेस हब के भी, जैसे नवीन जी ने कहा कि काफी मॉल आ रहे हैं, लोगों के रुझान सिलीगुड़ी में है, कमर्शियल में भी रुझान है। तो जैसे जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज, हेल्थ केयर और एजुकेशनल हब जैसे डेवलप होता है, वैसे वैसे रेसिडेंशियल एक पीछे से पीछे डेवलप होता है, क्योंकि उसके अंदर में काफी लोग आते हैं, जॉब मिलती है, तो उन लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। ये एक साइकिल है, उस साइकिल में डेफिनेटली एक बूम आएगा, सभी को एक रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड एंड सप्लाई का जो रेशियो है वैसे वैसे लैंड के प्राइसेस बढ़ेंगे। लैंड के प्राइसेस बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है डेली, तो डेफिनेटली प्राइसेस भी बढ़ेंगे। और आज भी सिलीगुड़ी एक रीजनेबल प्राइस में है। हमने कोशिश कर रखा है काफी सालों से कि सिलीगुड़ी में फ्लैट एक रीजनेबल कॉस्ट में हम अपने लोगों को दें। एंड सिलीगुड़ी
जैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है सिलीगुड़ी के दिन में, जैसी फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज बोल लीजिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज बोल लीजिए, उसके हिसाब से सिलीगुड़ी इज द बेस्ट। और रेट्स, जिस रेट्स में हम लोगों को उपलब्ध करा पा रहे हैं फ्लैट, और जो हमारा वेदर कंडीशंस है, सिलीगुड़ी इज द एप्रोप्रिएट प्लेस टू स्टे। तो एक डेफिनेटली बूम आएगा, लोगों को इमीडिएटली ले लेना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि कोविड के दौर में भी अगर आप देखें तो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अनुसार भी कोविड के दौर में भी रियल एस्टेट मार्केट के रेट्स, जो फ्लैट के रेट हैं या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट है, वो गिरे नहीं है कहीं ना कहीं। नहीं, तो इसका मतलब यही माना जाए कि कितना भी डाउन स्टेज आ जाए उसमें रेट गिरने वाले नहीं है। ये हम लोगों ने खुद देखा है। नवीन जी, जब क्रेडाई की बात हो रही है तो आप भी क्रेडाई के सदस्य, आप सभी क्रेडाई के सदस्य, तो मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे कहूंगा कि आप क्रेडाई के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता दें कि क्रेडाई संस्था आखिर क्या करती है और इसका क्या रोल है, और इस रियल एस्टेट मार्केट में क्रेडाई से क्या बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, ऐसे है, क्रेडाई नेशनल पूरे इंडिया के अंदर क्रेडाई है। अब क्रेडाई नॉर्थ बंगाल हमारे लास्ट 7 ईयर से है, बट हम लोग सक्रिय लास्ट 2 साल से हम लोग सक्रिय हुए हैं इस मामले में। क्रेडाई नॉर्थ बंगाल के अंदर हम लोग काफी ये चेष्टा कर रहे हैं कि हम लोग जो प्लानिंग सेक्शन है वो सिंगल बॉडी पे आ जाए, जिससे क्या होगा, कोई भी हम लोग प्लान पास करने देते हैं तो वो एक टाइम फैक्टर के अंदर होता है। तो उसको और स्पीडी करने से क्या होगा, जो हमारे बिल्डर भाई है, इनकी जो इंटरेस्ट रेट है जो इस पे एडिशन होता है उसके अंदर भी कुछ रियायत आ जाएगी। वो रियायत आने से वो क्या होगा, हम उसको आगे पास ऑन कर दें कस्टमर्स को, तो कस्टमर को भी इससे रियायत मिलेगी। सेकेंडली क्या होता है, क्रेडाई नॉर्थ बंगाल मतलब कुछ भी अगर आपके कोई कस्टमर के साथ किसी बात को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है, उसको भी सॉल्व करती है। और फाइनली क्या है, एक बिल्डर के अंदर आपसी भी एक तालमेल रहे, उस पे भी क्रेडाई नॉर्थ बंगाल काम कर रही है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो व्यवसाय और जो बायर्स है उनमें भी कहीं ना कहीं समाधान का या तालमेल बैठाने का प्रयास करेगा। मैं चाहूंगा संजय जी इस पर विस्तार से अगर कुछ कहें तो क्रेडाई पर। नहीं, क्रेडाई पे तो नवीन जी ने बोल दिया। मैं ये बोलूँगा, क्रेडाई इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंट्री में। मेंबरशिप भी इसकी आउटराइटली ऐसे नहीं दी जाती है, सिलेक्टेड पीपल को मेंबरशिप मिलती है जो ट्रस्टवर्दी हैं, अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, अच्छे कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिनके कस्टमर से रिलेशन अच्छा है। तो जब क्रेडाई का लोगो लग जाता है कोई बिल्डर के साथ में, तो यू कैन ऑलवेज बी एश्योर्ड दिस इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट ऑन देम फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी। मैं ऐड करने चाहूंगा रिगार्डिंग द डिमांड इन 2021 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। देखिए, सिलीगुड़ी के हिसाब से अगर आप देखें ना, तो सिलीगुड़ी इज अ ग्रोइंग सिटी। द प्राइसेस ऑफ लैंड अभी कंटिन्यूअसली राइजिंग में है। एट द सेम टाइम अभी क्या है, ऑफ लेट आपने देखा होगा, द प्राइसेस ऑफ मटेरियल्स आर आल्सो गोइंग अप, वेदर इट इज आयरन, स्टील, सीमेंट, व्हाटएवर द रॉ मटेरियल्स लिंक्ड टू लेबर कॉस्ट भी बहुत इंक्रीज। सो हमारा ये एंटिसिपेशन है कि 2021 में वी विल अगेन सी अ जंप इन द प्राइसेस ऑफ द रियल एस्टेट। सो अगर कोई कंज्यूमर आज के दिन सोचता है कि उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ही शुड नॉट डिफर द डिसीजन, ही शुड कम आउट एंड टेक अ डिसीजन राइट नाउ एंड इंश्योर ही बाइज अ प्रॉपर्टी अभी। आज से अगर 1 साल बाद वो लेने जाएगा तो प्राइसेस विल डेफिनेटली बी वेरी हाई ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल राइजिंग। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने देखा है, अभी देख रहे हैं कि आज के दिन में जो ईएमआई है, पहले क्या होता था, आपकी इनकम सपोज 50,000 रुपया है तो ईएमआई होती थी 25,000 रुपया। सो द रेशियो वाज 50% ऑफ योर इनकम। अभी क्या हो गया, आपकी इनकम बढ़ गई 70,000 रुपया हो गई, ईएमआई आ गई 17,000 की, बिकॉज ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.9 पे। अब आपकी जो ईएमआई का प्रोपोर्शन टू योर इनकम इज गोइंग डाउन, इट इज ऑलमोस्ट टू पॉइंट ऑफ 25%। यू शुड टेक एन अपॉर्चुनिटी, इसको अपॉर्चुनिटी समझ के दिस इज द राइट टाइम अगेन टू बाय अ प्रॉपर्टी। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मेरे को लगता है फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जो बोलना चाहूंगा कि आपके पैसे की जो यील्ड थी, जो आप बैंक में रख रहे थे, डिपॉजिट्स थे, जो पहले 6 से 7% थे, अभी आपके टाइम में देखेंगे आज के दिन में 4% 5% है। जबकि आपकी रियल एस्टेट की जो यील्ड है, जो रिटर्न्स है, कमर्शियल में आज के दिन में भी 7-8% की रिटर्न्स आ जाती है, विच इज मच मोर देन योर मनी लाइंग इन द बैंक। रेसिडेंशियल में भी पहले कम था, लेकिन डिपॉजिट रेट कम आने से ये गैप बहुत रिड्यूस हो गया है। तो अब आपके लिए एक एप्रिसिएशन का पॉइंट मिलता है रियल एस्टेट में, एट द सेम टाइम यील्ड मिल रहा है आपको इन्वेस्टमेंट में। सो अगेन दिस इज द राइट टाइम टू इंश्योर कि आप एक स्टेप लेके है प्रॉपर्टी बाइंग अभी कर सकें। और सिलीगुड़ी, जैसे मैंने बोला, प्राइसेस आर स्टिल वेरी अफोर्डेबल। एनीबडी हु वांट्स टू एंटर, I feel this is absolutely the right time for people to come in and take the decision. तो संजय जी का कहना है कि यह राइट टाइम है, सही समय है, क्योंकि समय जो होता है उसकी पहचान महत्वपूर्ण होती है। किसी भी क्षेत्र में समय अगर आप
पहचान जाते हैं तो जो अवसर है उसको गंवाना नहीं होता है। खैर हमारे पास समय काफी कम है और जाते जाते हम आखिरी दौर में अपने जो मेहमान हैं उनसे लास्ट यही क्वेश्चन करना चाहेंगे। विजय जी, आप खुद एक बिल्डर है, डेवलपर है, क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं आप? संक्षेप में बताइएगा, समय बहुत मैं एक प्रोजेक्ट, अभी नया प्रोजेक्ट जो एक लेके आ रहा हूँ, वो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। मेरे को बहुत खुशी है कि सिलीगुड़ी में एक फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट हम ला पा रहे हैं। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी, जब से मैंने देखा अदर स्टेट्स में काफी ग्रीन प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो एक सिलीगुड़ी में भी मेरे को लगा कि एक ग्रीन बिल्डिंग। अब जैसे कि अभी टाइम के लिए आपने बताया तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं, बाकी इस प्रोजेक्ट का नाम है सीपी ग्रीन्स। फिर काफी डिटेल्स खबर समय के माध्यम से हम देते रहेंगे। दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि विजय जी ने जो कहा सीपी ग्रीन के बारे में भी आप नजर रखिएगा। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात, इस पर किसी सप्ताह, अभी हम निश्चित नहीं कर सकते डेट, लेकिन किसी ना किसी सप्ताह हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ इस लोकेशन पर लेकर जाएंगे। जब विजय जी हमें माने ग्रीन सिग्नल देंगे तब हम ग्रीन आपको दिखाने लेकर जाएंगे, और ये वादा है हमारा कि आपको पूरी की पूरी डिटेल उपलब्ध कराएंगे। नवीन जी, कॉमर्शियल में क्या ला रहे हैं अपने यहाँ? कॉमर्शियल में ऑलरेडी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है चेक पोस्ट पे, और उसके बाद हम सिद्धि पैराडाइज के नाम से एक प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा, जिसमें 143 फ्लैट्स एंड 22 रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल है। उसमें 143 फ्लैट्स एंड 22 शॉप्स हैं उसके अंदर। वो G+7 का प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छी लोकेशन पे है, स्कूल से कनेक्टेड है, सेंट माइकल्स एंड डॉन बॉस्को के टिक सटकर है वो प्रोजेक्ट। और अभी हमारी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है उस प्रोजेक्ट। तो नवीन जी ने बताया कि बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। इसकी भी वर्चुअल जो लोकेशन विजिट है दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा, जो दर्शक लगातार हमारे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात को देख रहे हैं उन्हें पता है कि हम एक वर्चुअल टूर कराते हैं, एक वर्चुअल लोकेशन दिखाते हैं, जहां से आप घर बैठे यह देख पाते हैं कि वहां क्या क्या फैसिलिटीज है, कैसे कितने रूम कितने बड़े एरिया में बनाया गया है। इन सारी बातों को लेकर हमारी जो एंकर है वेंडिला, वो आपको लेकर जाती है लोकेशन तक, और हर सप्ताह हम आपको नए नए लोकेशन पर दिखाते हैं। इस सप्ताह भी अगले जो रविवार है, उस रविवार को भी हम आपको फिर एक नए एपिसोड में लेकर आएंगे, एक नए लोकेशन के साथ। और संजय जी, आखिरी चलते चलते अगर आप कोई संदेश देना चाहते हो नए वर्ष के लिए, और आप तीनों से मैं कहूंगा कि आप भी अपना नए वर्ष का कोई संदेश देना चाहते हो हमारे दर्शकों के माध्यम से, तो आप दे सकते हैं। यह एक ग्रीटिंग्स भी हो सकता है, एक शुभकामना भी हो सकता है। वेल, आशा ये है कि 2021 विल बी अ ग्रेट ईयर। एक जो रेस होता है, रेस में जो टफ पार्ट होता है ना, गड्ढे उड्ढे, तो वो गड्ढे हम लोगों ने 2020 में क्रॉस किए हैं। अब हमारा रेस का जो रोड है वो एकदम स्ट्रेट साफ रास्ता दिख रहा है आगे। तो हम और तेजी से, आशा करते हैं आप लोग सब और तेजी से और सिंपल वे में आगे बढ़ेंगे। वेरी हैप्पी न्यू ईयर, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस ईयर 2021। सीपी ग्रुप की तरफ से मैं आप सभी को एडवांस में अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि 2021 में आप लोगों का, जो भी आप इच्छुक फ्लैट बायर्स हैं, टेंटेटिव फ्लैट बायर्स हैं, वो सभी का अपना घर आप खरीद लें। नवीन जी, आपका भी? सिद्धि ग्रुप की तरफ से इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप योर मास्क एंड स्टे सेफ डिस्टेंसिंग। तो हमारे सभी मेहमानों ने आप सभी को शुभकामनाएं दी है हमारे प्रॉपर्टी शो के माध्यम से, और खबर समय भी आपको शुभकामना देता है पूरी टीम की ओर से कि आने वाला नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो और शांतिपूर्ण हो। रियल एस्टेट की बात जो है, प्रॉपर्टी शो, यह हमारा चलाने का उद्देश्य आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूं कि इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट एक बड़ा मार्केट और एक बड़ा व्यवसाय बनकर उभरा है सिलीगुड़ी के लिए। कलकत्ता के बाद अगर हम देखें तो सिलीगुड़ी संभावनाओं को तलाश रहा है, और यहाँ आसपास के जो एरिया के लोग हैं, जैसे बिहार की बात करें, आसाम की बात करें, नेपाल की बात करें, दूर दराज के लोग भी यहाँ कहीं ना कहीं एक छोटा सा बसेरा ही या एक फ्लैट लेने की कोशिश करते हैं। उसका कारण यह है कि यहां से 10 मिनट की दूरी पर आपको पहाड़ की वादियां मिलेगी, आपको जंगल मिलेंगे। ऐसी शांति और किसी भी जगह नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है, कहीं भी आप जा सकते हो, कहीं से भी आप आ सकते हो। आप आधे घंटे की दूरी में
विदेश जा सकते हो, नेपाल। तो इतना सरल और इतना अच्छा लोकेशन को आप मिस तो करना नहीं चाहोगे। यही बात है कि हम प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात में इस मार्केट को, इस सेगमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इसमें लगे हुए हैं। यह हमारा उद्देश्य है और हमारा साथ दे रहे हैं इसमें क्रेडाई के जो सदस्य हैं, प्लस जो यहाँ के बिल्डर हैं, वह भी हमारे शो में आकर अपना वक्तव्य देते हैं, इस मार्केट के बारे में बताते हैं, ताकि आपकी उलझने सुलझाई जा सके। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा और आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।